کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے سبھی لوگ اپنے اپنے دردناک انجام کو پہنچے، اور ان کا انجام جو ہوا وہ بہت ہی دردناک تھا، اور ان کی زندگی بھی جہنم سے کم نہ تھی۔ لیکن 5 افراد ایسے بھی تھے جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل میں ملوث تھے، اور آخرکار ان کا بھی بہت ہی دردناک انجام ہوا۔ ان میں سے عمر ابن سعد ابی وقاص، خولی ابن یزید اصبہی، شمر ابن ذوالجوشن، حرملہ اور سنان ابن انس نخعی شامل تھے۔ ان 5 افراد کا انجام کیا ہوا، ان کی دردناک موت کیسے ہوئی، اور کربلا میں ان کے کیا کیا سنگین جرائم تھے، یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور یزیدی فوج کا ہر سپاہی یہ سوچ کر خوش تھا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، اب ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا، یزید ہمیں سونے سے تول دے گا۔ پر یہ صرف ان کا وہم تھا، کیونکہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر حضرت امیر مختار کا پنجہ ان سبھی قاتلان حسین کی گردنوں میں تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی دمبے کی کھال پہن کر بھاگ رہا تھا تو کوئی خود کو قبر میں زندہ دفن کروا رہا تھا۔ جب خولی کو اپنے کیے کی سزا مل رہی تھی، خولی جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کربلا سے لے کر آیا تھا اور اپنے گھر کے تندور میں چھپا دیا، اس ارادے سے کہ اس کے بدلے یزید سے بڑا انعام لے گا۔ اس دنیا میں اس کو انعام تو ملا، لیکن عذاب کی صورت میں۔ جب حضرت امیر مختار نے قاتلان حسین کی لسٹ بنوائی اور حکم دیا کہ خولی کو پکڑ کر لاؤ، تو مختار کے سپاہی اس کے گھر پہنچے۔ تقریباً 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ سپاہی جب بھی آتے تو خولی کی دوسری بیوی انہیں دروازے پر روک دیتی تھی، اور جب وہ اندر داخل ہوتے تو پورے گھر کی تلاشی لیتے، لیکن خولی انہیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ 4تھی مرتبہ وہ زبردستی داخل ہوئے تو خولی کی دوسری بیوی انہیں بولتی رہی کہ میں نے تم لوگوں کو کتنا کہا ہے کہ خولی یہاں پر نہیں ہے، تم لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اس سے بات کیے بغیر ایک سپاہی خولی کی پہلی بیوی سے آ کر پوچھتا ہے، جو کہ خود ایک حیا والی اور خولی کی اذیتوں سے پریشان عورت تھی۔ وہ کہتی ہے کہ تم جب پہلی بار یہاں آئے تھے تب بھی خولی گھر پر موجود تھا، اور چمنی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سپاہی فوراً چمنی کی طرف جاتے ہیں تو اس میں اوپر خولی ہوتا ہے۔ سپاہی اسے کہتے ہیں کہ نیچے آ جاؤ، وہ نہیں آتا، جس پر سپاہی نیچے تندور میں آگ لگا دیتے ہیں۔ خولی جلنے کی اذیت سے نیچے آ گرتا ہے، اور سپاہی اسے لے جا رہے تھے تو وہ اپنی پہلی بیوی کو مارنے لگتا ہے اور اسے برا بھلا کہہ کر کہتا ہے کہ تم نے مجھے پھنسا دیا۔ سپاہیوں نے خولی اور اس کی دوسری بیوی کو گرفتار کر لیا، کیونکہ وہ خولی کو بچا رہی تھی اور سپاہیوں سے جھوٹ بول رہی تھی، اور اس کی پہلی بیوی کو گواہ کے طور پر امیر مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو اس عورت نے یہ شاہدی دی کہ خولی واقعی حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک گھر میں لے آیا تھا اور اپنی دوسری بیوی کو بڑے بڑے انعاموں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس خبیث کو جو مرضی سزا دو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب خولی امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے آیا تھا تو اس کے خون کے نشان زمین پر گر رہے تھے، تو خولی کے کہنے پر میں پوچھا لگا کر خون کے نشان صاف کر رہی تھی تو وہ نشان صاف نہیں ہو رہے تھے، اور ان نشانوں کی جگہ سے زمین سے خون نکل رہا تھا۔ یہ بات سن کر وہاں موجود سارے لوگ رونے لگے تو خولی کہتا ہے، یہ ہے مختار کے انصاف کی عدالت جس کا تم ڈنڈورا پیٹتے ہو، جہاں اس عورت کی شاہدی پر یقین کیا جا رہا ہے جو صرف حسد کی وجہ سے مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ مارنا ہے تو مار دو، ایسے فضول کی شاہدیاں مت لو۔ تو حضرت امیر مختار کہتا ہے، اگر تمہاری دوسری بیوی کی شاہدی لی جائے تو کیا قبول کرو گے؟ خولی کہتا ہے، ہاں ضرور، اس پر مجھے یقین ہے، یہ میری ہمدرد ہے، اس سے پوچھو، یہ تمہیں سب سچ بتائے گی، اور جو یہ کہے گی وہ میں مان لوں گا۔ مختار کہتا ہے، تم قسم کھاتی ہو کہ سب سچ بتاؤ گی؟ وہ کہتی ہے، ہاں۔ واقعی خولی حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے کر آیا تھا اور اس سر کو تندور میں رکھ دیا، اور مجھے کہنے لگا، ایک ایسا مال غنیمت لایا ہوں جو کہ تم لوگوں کے شامی بادشاہ کے ایک خزانے کے برابر ہے۔ اور وہ دن گئے جب ہم بے پناہ دولت کی حسرتیں کرتے رہتے تھے۔ اب اگر ہم ساری زندگی جوا کھیلتے رہیں اور ہارتے رہیں پھر بھی ہماری جیت ہوگی،
जो सर इस तंदूर में है उस सर के वज़न के बराबर मुझे सोना दिया जाएगा। बस इस सर को मुझे इब्ने ज़ियाद के हाथों यजीद के हवाले करने की देर है। मुझे यकीन है कि उनके इनाम से हम कूफे में बहुत बड़ा जुए का अड्डा बना सकते हैं, ऐसा जुए का अड्डा जिसके मुकाबले में शाम का वो जुए का अड्डा बहुत छोटा नजर आएगा। ये सुनकर खुली बहुत हक्का बक्का रह गया और कहता है, ये अदालत नहीं मजाक है और इसके जल्लाद ये दोनों औरतें हैं और तुम क्यों इतने झूठ बोल रही हो? तुम समझती हो कि तुम मेरे खिलाफ बोलोगी तो ये तुम्हारी दिली मुरादें पूरी कर देंगे? तो वो कहती है, मुझे नहीं पता कि मैंने जो कहा उसमें मेरा फ़ायदा है या नुकसान, जो मैंने देखा वो बताया। ये सब सुनकर हज़रत अमीर मुख्तार अब्दुल रहमान को कहता है कि हुक्म अदालत क्या है? अब्दुल रहमान कहता है, मेरे मुताबिक खूली ने सर हुसैन इब्ने अली की जो तौहीन की है, ऐसा गुनाह किया है कि मैं उसके बदले में कोई शरई हक नहीं जानता। इसकी सज़ा ऐसे परवरदिगार खुद बरोज़े क़यामत लेगा, मगर यह कि खूली सर हुसैन की लालच में और हुसैन के अहले बैत को लूटने की नीयत से करबला गया था और शहदाए करबला में से 2 अफराद का कातिल भी है, तो कानून का फैसला इसका क़िसास है। हज़रत अमीर मुख्तार हुक्म देता है, इस मलऊन के जराइम को लोगों को पढ़कर सुनाओ और इसका सर कलम कर दो। करबला में मौजूद यजीदी फ़ौज के सारे सिपाहियों का कमांडर उमर साद इब्ने अबी वक्कास था। उमर साद ने रे की हुकूमत के बदले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग की थी। जंग के बाद उमर साद को रे की हुकूमत मिलना तो दूर की बात, रे की मुट्ठी बराबर मिट्टी भी नसीब ना हुई। जब हज़रत अमीर मुख्तार ने कातलाने हुसैन की लिस्ट बनवाई और अपने ओहदे पर फायज होते ही सबसे पहला काम ही यही किया कि जो करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग कर रहा था, उन सब को पकड़ कर उन्हें अपने किए की सज़ा देता जा रहा था। मुख्तार के खौफ से कोई दुम्बे की खाल में छुपकर भाग रहा था, तो कोई खुद को कब्र में जिंदा दफन करवा रहा था। तो उमर साद भी अपने बेटे के साथ, जो कि करबला की जंग में मौजूद था और अपने बाप के गुनाहों में भी बराबर का शरीक था, शहर छोड़कर भाग गए। मुख्तार के सिपाही उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन वो अपने आप को छुपाते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते। एक वक्त ऐसा आया कि वो एक तालाब पर पहुंचे और गुस्ल करने का इरादा किया, तो उमर साद के बेटे ने उसे रोका और लोगों के सामने जाने से मना किया, जिस पे उमर साद ने कहा, हम भाग भाग कर थक गए हैं, दिमाग सोचना बंद कर गया है, अगर गुस्ल करेंगे तो ताज़ा तवाना हो जाएंगे और सोचने की कुव्वत भी होगी। ये कहकर दोनों तालाब में उतर गए, तो वहाँ पर नहाते हुए लोगों में से एक ने उसे पहचान लिया और कहता है, तुम उमर साद हो? ये इनकार करता है कि मैं उमर साद नहीं हूँ। तो वो कहता है, मेरा दिमाग तुम्हारी बात तस्लीम कर लेगा, पर मैं अपनी आंखों को कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम उमर साद नहीं हो? इस बातों पर दोनों में बहुत बहस होती है, जिस पर उमर साद को अपना बेटा वहां से ले गया और एक दूसरे को कहते रहे कि लोगों ने हमें पहचान लिया है, ऐसा ना हो कि वो मुख्तार को खबरदार कर दें। उमर साद एक मंसूबा बनाता है और अपने बेटे को मुख्तार के पास भेजता है और खुद छुपते छुपते अपने घर को रवाना होता है। जब उमर साद का बेटा मुख्तार की दरबार में पहुंचता है, तो मुख्तार को कहता है, मेरे वालिद ने हरगिज़ वादा खिलाफी नहीं की और ना ही करेंगे। हम सिर्फ अपने बागात और ज़मीनों को देखने के लिए कूफा से बाहर गए थे। हम ज़मीनों तक पहुँचे ही ना थे कि हमको एहसास हुआ कि आपको इतला क्यों नहीं दी। बाबा ने मुझे भेजा था कि आपको बाखबर कर दूँ। तो मुख्तार पूछता है, वो खुद क्यों नहीं आया? तो ये कहता है, उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आप मेरे वालिद पर शक क्यों कर रहे हैं? वो कभी वादा खिलाफी कर ही नहीं सकते। तो मुख्तार कहता है, अभी तो वादा तोड़ चुका है। उमर साद का बेटा कहता है, कैसे तोड़ा होगा? आपने उन्हें अमाननामा दिया, उन्होंने कबूल कर लिया कि आप और आपकी हुकूमत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। मुख्तार उससे एक सवाल करता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है? यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि उमर साद की बीवी मुख्तार की बहन थी और उमर साद का बेटा मुख्तार का भांजा था। जब मुख्तार उसे ये सवाल करता है तो वो कहता है कि माँ घर पर है, जबकि उससे पहले ही मुख्तार अपने साथ ले आया था। और उमर साद की बीवी ने मुख्तार को सब कुछ बता दिया कि कैसे उमर साद और उसके बेटे ने रे की हुकूमत के बदले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग की थी और वो दूसरी औरतों के साथ मुख्तार के पास थी।
मुख्तार फिर से उस लड़के से पूछता है कि सच में तुम्हारी माँ घर में है? तो वो कहता है हाँ, और मुख्तार उसे पूछता है कि आपको इतला क्यों नहीं दी? बाबा ने मुझे भेजा था कि आपको बाखबर कर दूं। तो मुख्तार पूछता है वो खुद क्यों नहीं आया? तो ये कहता है उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आप मेरे वालिद पर शक क्यों कर रहे हैं? वो कभी वादा खिलाफी कर ही नहीं सकते। तो मुख्तार कहता है अभी तो वादा तोड़ चुका है। उमर साद का बेटा कहता है कैसे तोड़ा होगा? आपने उन्हें अमाननामा दिया, उन्होंने कबूल कर लिया कि आप और आपकी हुकूमत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। मुख्तार उससे एक सवाल करता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है? यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि उमर साद की बीवी मुख्तार की बहन थी और उमर साद का बेटा मुख्तार का भांजा था। जब मुख्तार उसे ये सवाल करता है तो वो कहता है कि माँ घर पर है, जबकि उससे पहले ही मुख्तार अपने साथ ले आया था। और उमर साद की बीवी ने मुख्तार को सब कुछ बता दिया कि कैसे उमर साद और उसके बेटे ने रे की हुकूमत के बदले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग की थी और वो दूसरी औरतों के साथ मुख्तार के पास थी। मुख्तार फिर से उस लड़के से पूछता है कि सच में तुम्हारी माँ घर में है? तो वो कहता है हाँ, और मुख्तार उसे पूछता है कि तुम्हारा बाप इस वक्त कहाँ है? तो वो कहता है बाबा बागात को देखकर ही वापस आएंगे। मुख्तार उस बच्चे की सारी चालाकी समझ जाता है और अपने सिपाही को हुक्म देता है कि अभी उमर साद के घर जाओ और उसे गिरफ्तार करके लेकर आओ। अगर वो ज़रा सी भी चालाकी करे तो उसे वहीं ख़त्म कर दो। जब मुख्तार के सिपाही उमर साद के घर पहुंचे थे तो उमर साद उनको देखकर तलवार निकाल लेता है, जिस पर सिपाही उसे कहते हैं कि अपनी तलवार हमारे हवाले कर दो और हमारे साथ चलो, जिस पर वो इनकार कर देता है और सिपाहियों को मारता हुआ भागने लगता है। जिस पर एक सिपाही उसका रास्ता रोककर ये कहता है कि काश तुम ऐसा ना करते तो शायद यहाँ से जिंदा ले जाए जाते। और वो सिपाही दूसरे सिपाहियों को कहता है कि कोई भी बीच में ना आए। और उस सिपाही और उमर साद की आपस में लड़ाई होती है। लड़ते लड़ते वो छत पर पहुंच जाते हैं, जिस पर मौका मिलते ही वो सिपाही उमर साद को छत से नीचे फेंक देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। उमर साद का सर जब मुख्तार के पास लाया जाता है तो वहाँ उमर साद का बेटा और उसकी बीवी भी मौजूद होते हैं। उमर साद का बेटा मुख्तार को धमकियाँ देता है और गलत अल्फाज भी कहता है, जिस पर मुख्तार उसको कोई भी जवाब नहीं देता और खामोशी से उसको देखता रहता है। और जब वो हज़रत मुख्तार को ये धमकी देता है कि अनकरीब तुम्हारा कत्ल भी मेरे ही हाथों होगा, तो इस पर उमर साद की बीवी एक सिपाही की तलवार निकालकर अपने ही बेटे की गर्दन को उड़ा देती है। सनान बिन अंस नखई उमर बिन साद के लश्करों में से है और एक कौल के मुताबिक उसने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा किया था। उसके बाप का नाम अबू उमरो और उसके दादा का नाम अंस था और इसकी पहचान सनान बिन अंस के नाम से है। इसकी तारीख पैदाइश मालूम नहीं है, लेकिन ये कूफे में पैदा हुआ था। इब्ने अबी अल हदीद ने इब्ने हलाल सकफी के हवाले से कहा है कि वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में बच्चा था और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खबर दी कि इसके हाथों रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद की शहादत वाक़ होगी। बाज़ तारीखी मौरखों ने उसे एक जंगजू और मजनू कहा है। इसकी तारीख वफ़ात में इख्तलाफात है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब आखिरी लम्हात में कत्लगाह में गिरे तो कोई शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने की जुर्रत नहीं कर रहा था। सनान आगे बढ़ा और उसने अपने नेज़े से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पुश्त और सीने पर वार किए और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया। खूली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा करना चाहता था, लेकिन बदन की लर्जिश की वजह से उसमें कामयाब ना हुआ। सनान उसे सब व शितम किया और कहते हुए अल्लाह तुम्हारे बाजू शल करे और हाथ जुदा करे, अपनी सवारी से नीचे उतरा और आपका सर मुबारक तन से जुदा किया। फिर बुलंद आवाज से ये अशआर पढ़े, मेरी रकाब को सोने और चांदी से भर दो, क्योंकि मैंने सैयद वाले मकाम को कत्ल किया है। मैंने उसे कत्ल किया है जिसके माँ बाप बेहतरीन हैं। और उमर बिन साद के खेमे की तरफ बढ़ा। ये अशार सुनते ही उमर बिन साद सनान से उलझ पड़ा और वो उसे लेकर खेमे में चला गया
उमर ने उसे ताजियाना मारते हुए कहा कि अगर उबैदुल्लाह ने ये बात सुन ली तो वो तुम्हारी गर्दन मारने का हुक्म देगा। अलबत्ता हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने और आपके सर तन से जुदा करने में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। बाज रिवायत में शिमर का नाम लिया गया है। बाज रिवायात के मुताबिक शिमर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने पर सवार हुआ और उसने पुश्त गर्दन से आपके सर मुबारक को जुदा किया। मनकोल है कि उमर बिन साद ने आपके सर मुबारक को खूली बिन यजीद के हवाले किया और उसे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास फतेह की खबर देने के लिए भेजा। यजीद की मौत के बाद कूफे के संगीन हालात में सनान कातलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तौर पर पहचाना जाता था। बाज़ रवायात के मुताबिक उसने मखूफियाना जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। क़याम मुख्तार के बाद सनान कूफा बसरा की तरफ फरार हो गया। बाज़ रवायात में ये आया है कि सनान मुख्तार सकफी के हिमायतियों के हाथों कत्ल हुआ और एक रिवायत के मुताबिक इसका कत्ल हज्जाज सकफी के कूफा की हाकमियत के दौर में हुआ। हजरत मासूम अली असगर जब प्यास की शिद्दत से तड़प रहे थे और पानी से महरूम होने के बाद बहुत प्यासे थे, लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे इब्न साद की फौज के पास ले गए। मुझ पर रहम करें, लिहाजा इस बच्चे पर रहम करें, इसको थोड़ा पानी पिला दें। जब वो उनको मुखातिब कर रहे थे तो हुरमला इब्न काहिल अल असदी का एक तीर उसके पास आया तो उसने इस बच्चे को रग से रग तक ज़िबह कर दिया। लिहाजा इस वक्त तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे बोसा दिया जब तक कि उसकी हथेली खून से भर गई और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे आसमान की तरफ उठाया। हुरमला की मौत हजरत अमीर मुख्तार सकफी के हाथों हुई। मिनहाल ने बयान किया है कि जब वाक़या करबला के बरसों बाद मक्का छोड़ना चाहता था तो उसकी मुलाकात हजरत ज़ैनुल आबदीन से हुई। हजरत सज्जाद ने उससे हुरमला के बारे में पूछा और उसने कहा वो कूफा में जिंदा है। हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाए और कहा, ए खुदा, उसे लोहे की तपश का मजा चखवा, खुदा उसे आग की तपश का मजा चखा देगा। और मिनहाल कूफे जाने के बाद उसने मुख्तार सकफी की अयादत की। जब मिनहाल कूफे में वापस आया तो उसने देखा कि अमीर मुख्तार के सिपाही एक शख्स को लेके आ रहे हैं जिसके हाथ पांव कटे हुए हैं और उसका बुतन आग में जलाया जा रहा है। जब मिनहाल ने हजरत अमीर मुख्तार को हजरत ज़ैनुल आबदीन की वो बद्दुआ हुरमला के बारे में बताई तो अमीर मुख्तार सकफी बहुत खुश हुए कि जो बद्दुआ इमाम ने हुरमला को दी थी वो मेरे हाथों पूरी हुई। शिमर इब्न ज़िलजोशन इब्तदा में असहाब अली में शामिल था, लेकिन बाद में इमाम अली अलैहिस्सलाम और आपके खानदान से बुग़्ज़ रखने वाले दुश्मनों के ज़मरे में शामिल हुआ। उसका बाप फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुआ और उसकी माँ बदनाम औरतों में से थी। वाक़या करबला में उसका किरदार नुमाया था। उसने मुस्लिम इब्न अकील की शहादत के असबाब मुहैया किए, आशूरा के दिन जंग की आग भड़का दी। उमर बिन साद के मेसरे का अमीर था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उसने शहीद किया, क़याम पर हमला किया और इमाम सज्जाद को शहीद करने की कोशिश की। ज़ियारत आशूरा में शिमर का तज़किरा लानत व बददुआ के साथ हुआ है। उसको मुख्तार सकफी के मुकाबले में शिकस्त हुई और उसका सर तन से जुदा हुआ। बाज़ दूसरों का ख्याल है कि इसका सीना क्योंकि आगे की तरफ बड़ा हुआ था, उसी वजह से इसको ज़िलजोशन कहा जाता था। एक कौल ये भी है कि इसका नाम जोशन बिन रबैया था। ज़िलजोशन ने इस्लाम कबूल करने के सिलसिले में रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को वक़्त ना दी, लेकिन फतेह मक्का में जब मुसलमान मुशरिकीन पर फतेहमंद हुए तो उसने बहुत से दूसरों की मानंद इस्लाम कबूल किया। और शिमर की भी मौत हज़रत अमीर मुख्तार सकफी के सिपाहियों के हाथों ही हुई थी।